Namaskar दोस्तों, good morning. I hope you all are doing well. So today's date is 20th Feb 2024 and we are going to discuss the Hindu. ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं आपको आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विच इज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है मंडे को, इसी वाली मंथ में मंडे को, जिसमें उन्होंने सेंटर का जो एक अमेंडमेंट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, ठीक है, उसको उन्होंने अमेंडमेंट को उन्होंने अपहेल्ड नहीं किया है और जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन अमेंडमेंट के द्वारा डाली गई थी उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया है और डिक्शनरी वाली डेफिनेशन में बदल दिया है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ऐसे 2-4 आर्टिकल और भी इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस इट इलैबोरेटली. ठीक है, मैंने बस कॉन्टेक्स्ट दिया आपको. इस सेशन के बाद आपको हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेंस और प्री से लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट ट्रस्ट अस एंड लिसन द सेशन फुल. बीच में सेशन को मत छोड़ के जाना, इट्स अ रिक्वेस्ट. ओके, एंड ट्राई टू शेयर इट, और इफ़ यू वांट टू हैव अ डेली एनालिसिस सब्सक्राइब इट. ओके, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. एज यूजुअल हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, तो लेट्स स्विच ऑन टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. ओके, सो इन टुडेज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जो आर्टिकल आए हैं इंपॉर्टेंट वो है एक रीसेंट रिपोर्ट है फिनटेक के बारे में, नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में न्यूज़ है, और केरला में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बारे में न्यूज़ है. Why has Kerala, a region renowned for its verdant beauty, become a battleground between humans and wildlife? A state cloaked in lush forests, Kerala's geographical area is nearly 30% forest cover. Yet it's not a vast wilderness, but a small state with a width of around 70 kilometers, housing a population of more than 3.46 crore. Numerous human settlements and agricultural plantations are nestled close to protected forest regions, particularly in the hilly, heavily forested eastern part of the state. This proximity between humans and wildlife has made conflict inevitable. Over the last few years, Kerala has seen a sharp increase in human-wildlife conflict incidents, with those living near forest fringes suffering significant damage to their livelihoods, primarily due to frequent raids by elephants and wild boars. Since 2015, over 600 people have tragically lost their lives. The harmony between humans and nature in Kerala is under threat. But what has led to this escalating conflict? Let's delve into the reasons behind this growing discord between humans and the wildlife of Kerala. The expansion of cultivation around wildlife habitats is a significant contributor. As we've cleared more land for farming, we've encroached on the homes of countless animals. The changes in cropping patterns further exacerbate this issue, as certain crops may attract wildlife, leading to more frequent encounters. Moreover, conservation efforts have led to a significant increase in the population of animals, notably elephants and tigers. While this is a victory for biodiversity, it has intensified the human-wildlife conflict as more animals compete for less space. This issue is further complicated by the movement of humans and livestock within these wildlife habitats during odd hours, which can lead to unexpected confrontations. These factors have heightened the tension, but are the solutions in place sufficient to address this issue? While there have been attempts to mitigate these conflicts, the effectiveness of these solutions is debatable. Elephant-proof trenches and solar power fences are widely used in Kerala. These defenses can be quite effective, provided they are properly maintained. Yet, there are regions where these mechanisms have not been installed, and fences are often broken by locals to let their cattle into the forests for grazing. Even elephants themselves destroy the fences using their legs and tusks. The Forest Department has put forth a substantial master plan, proposing hanging power fences out of reach of elephants. Additionally, the state government's new eco-restoration policy aims to plant indigenous plants such as wild mango, wild gooseberry, and wild jackfruit to ensure wild animals' food security and dissuade them from entering agricultural lands. However, these measures need to be supplemented by early warning systems,
and tracking mechanisms. Only time will tell if these measures will restore the balance or if the human-wildlife conflict in Kerala will continue to escalate. The human-wildlife conflict in Kerala is a complex issue with no easy solutions. Geographical and demographic factors contribute to the tension, with human settlements and agricultural plantations encroaching on wildlife habitats. The escalation is driven by increased cultivation, changing crop patterns, and conservation efforts that have boosted animal populations. Proposed solutions like elephant-proof trenches and solar power fences have proven largely ineffective. As we strive for progress, we must remember the importance of coexistence and harmony with nature. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस व्हाई आर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक्सकलेटिंग इन केरला। तो इस पे एक वीडियो है, पहले आप वीडियो वॉच करिए, उसके बाद मैं समराइज करूंगा आर्टिकल। ओके, यू हैव वॉच्ड द वीडियो, नाउ लेट मी समराइज इट फॉर यू। देखो, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो केरला में बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसके रीजंस क्या दिए गए हैं? द इंक्रीज्ड एरिया अंडर कल्टिवेशन। रीजन बिहाइंड दिस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इज इंक्रीज्ड एरिया अंडर कल्टिवेशन, ठीक है, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, कंजर्वेशन एफर्ट्स जो लिए गए हैं उसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है एनिमल्स की, ओके, और मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमंस इन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। दीज आर द मेजर रीजंस, ठीक है। अब पूरे आर्टिकल की स्टोरी क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेट्स डिस्कस। सबसे पहली बात है कि जो केरला स्टेट की ज्योग्राफी है ना, उसको आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट इनटू द केरला स्टेट्स ज्योग्राफी। यहां पे देखिए आप, दिस इज केरला स्टेट ज्योग्राफी, ये केरला स्टेट है। केरला स्टेट की ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं कि लेंथ वाइज ये स्टेट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, इन लेंथ, बट इस स्टेट की विड्थ बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 70 किलोमीटर विड्थ है, ठीक है। इसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है, केरला में जो फॉरेस्ट कवर है ना वो 30% है। दिस इज द एरिया विच इज मार्क्ड इन ग्रीन ना, दिस इज द एरिया विच हैज अ फॉरेस्ट कवर। जस्ट अ मिनट, या तो ये वाला एरिया सारा फॉरेस्ट कवर में आता है, ठीक है। तो वैसे ही स्टेट की विड्थ कम है। अगर आप इतना ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर रखेंगे और बाद में 3 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है केरला की, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इन फॉरेस्ट के फ्रिंजेस पे बहुत सारी ह्यूमन पॉपुलेशन हैबिटेट होंगे, ठीक है। अब जब ये ह्यूमन के हैबिटेट फॉरेस्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन ह्यूमन टेरिटरी एंड मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस इन एनिमल, मतलब वाइल्ड लाइफ टेरिटरी, एक ऑब्वियस बात है, ये मूवमेंट होगा। तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का क्या रोल है कॉन्फ्लिक्ट करवाने में, क्लियर है आपको? रोल ऑफ ज्योग्राफी क्लियर है? ओके फाइन। एज मेंशन्ड हियर 70 किलोमीटर एवरेज विड्थ, पॉपुलेशन मोर देन 3 करोड़ एंड फॉरेस्टेड एरिया, मेजर फॉरेस्टेड एरिया, ठीक है। उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम है, एक तो ये ज्योग्राफी का हो गया, दूसरा मेजर प्रॉब्लम ये है कि देखो केरला में ये सारे इंसिडेंटेड अभी से शार्प इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। किन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? जो लोग फॉरेस्ट के फ्रिंजेस पे रह रहे हैं, जो ह्यूमंस इन फॉरेस्ट के फ्रिंजेस पे, यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो फ्रिंज एरियाज में रह रहे हैं, मतलब अगर ये फॉरेस्ट है तो जस्ट इसके साइड 200-300 मीटर छोड़ के जो लोग रह रहे हैं ना, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। इनका नंबर क्या है? मोर देन 600 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ सिंस 2015 ड्यू टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और जो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अफेक्टेड विलेजेस हैं उनके लोगों ने अब बाहर आके स्ट्रीट्स पे आके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है एंड ह्यूमंस वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है, हमारी फसल का नुकसान हो रहा है और यहाँ तक हमारे लोगों की जाने तक जा रही हैं, ठीक है। इसलिए ये पूरा आर्टिकल आया है, इसलिए ये इशू लाइमलाइट में आया। सी दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज वेल एज केरला स्टेट गवर्नमेंट कि भाई आप मेजर्स क्यों नहीं ले रहे हैं ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल टॉक अबाउट व्हाट इज द स्केल ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टेट, मतलब कितनी लेवल पे है ये। तो 1004 एरियाज में ऐसा इंसिडेंट हो रहा है और 48,000 से ज़्यादा इंसिडेंट अभी तक रिकॉर्डेड किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया है कि कौन कौन से एनिमल्स इन्वॉल्व हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में।
सबसे पहले तो वाइल्ड एलिफेंट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आता है ह्यूमंस के। उसके बाद वाइल्ड बोर्स, मकाक, स्नेक्स, ये सारे एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं किसके? ह्यूमंस के। ओके, क्लियर है? ओके, जस्ट अ मिनट। फाइन, ये पैरा आपको क्लियर है, बस इतना याद रखना है इस पैरा में। नेक्स्ट जो बात कही गई है वो ये है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अब रीजंस क्या है, लेट्स सी द रीजंस वन बाय वन। रीजन जो मेजर दिए गए हैं वो ये है कि अंडर कल्टिवेशन, जो एरिया है वो इंक्रीज किया गया है अंडर कल्टिवेशन अराउंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। ठीक है, मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ, ये फॉरेस्ट है, ठीक है, इसके अराउंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होगा, तो इसके अराउंड फ्रिंजेस पे ही एग्रीकल्चरल एरिया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन करके इंक्रीज कर दिया है। जो कि पहले वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हुआ करता था उसको इन्होंने डिफॉरेस्ट करके वहाँ पे अपना कल्टिवेबल लैंड बना दिया है। तो वहाँ तो भाई एनिमल्स पोच करेंगे, बिकॉज पास्ट में वो उनका वाइल्ड लाइफ हैबिटेट था, आपने उसको कन्वर्ट किया है एग्रीकल्चरल लैंड में। तो एक तो ये रीज़न है कि एरिया अंडर कल्टिवेशन अराउंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैव बीन इंक्रीजिंग। उसके बाद क्या रीज़न है? चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड टाइगर ड्यू टू कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। एक बात बता दूं आपको, मेंस में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द केस ऑफ केरला, हाउ इट्स ज्योग्राफी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द इंसिडेंसेस, रिसेंटली प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसकी वजह से। अब आपको यहाँ बताना है, जो जनरल आंसर होगा कि क्या रीजंस हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की। ये जनरल रीजंस है विच कैन बी अप्लाइड टू होल इंडिया। ओके, तो रीजंस, ठीक है, आपको क्लियर है। उसके बाद जो रीजन है वो है मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमंस इन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ड्यूरिंग ऑड आवर्स। ऑड आवर्स मतलब देखो, जो आसपास की पॉपुलेशन है वो ह्यूमंस क्या करते हैं, जो आम आदमी है ना, आसपास की पॉपुलेशन जो ह्यूमंस की रहती है वो क्या करती है, दे टेक देयर लाइफ स्टॉक्स, मतलब काऊ, बफेलो, फॉर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए जाते हैं फॉरेस्ट में, वहाँ उनके दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द वाइल्ड लाइफ ऑफ दैट फॉरेस्ट। अब एक प्रॉब्लम ये है कि आप उनके हैबिटेट में जा रहे हैं ग्रेजिंग के लिए, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप ऑड आवर्स में जा रहे हैं। ऑड आवर्स इन द सेंस कि भाई आप रात के टाइम जा रहे हैं, आप शाम के टाइम जा रहे हैं, जब एनिमल्स या एलिफेंट्स वगैरह दे आर ऑन माइग्रेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल, उस टाइम पे जा रहे हैं। तो ये जो ऑड आवर का कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो इसकी वजह से दे एनकाउंटर ईच अदर ऑन देयर वे एंड इट टर्न्स आउट इनटू अ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मेजर रीजंस क्लियर है। उसके बाद व्हाट आर द प्रपोज्ड सॉल्यूशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रपोज्ड सॉल्यूशंस क्या है? देखो, जो केरला गवर्नमेंट ने सॉल्यूशंस लगा रखे हैं वो इफेक्टिव तो हैं, बट उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है प्रॉपरली, इसलिए वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्या सॉल्यूशंस हैं? एक तो एलिफेंट प्रूफ ट्रंचेस बनाई गई हैं, सोलर पावर फेंस लगाई गई है, ठीक है, ये दो सॉल्यूशंस हैं, बट इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही है, इस वजह से ये इफेक्टिव नहीं है इतने। अब एलिफेंट प्रूफ ट्रंच क्या होती है, यहाँ समझो आप, ये मान लो माइग्रेशन पैटर्न है, ठीक है, किसका? एलिफेंट का। दे जनरली फॉलो अ सिंगल पैटर्न, जहाँ से वो गुजरते हैं अपने पानी वगैरह पीने के लिए, खाना खाने के लिए, व्हाटएवर। तो वो उनका एक वेल डिफाइंड पाथ होता है। अब उसके बीच में मान लो कोई गांव आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना मैं समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है, बीच में कोई गांव आ रहा है, तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या केरला गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशन दिया इसका, कि भाई इस गांव के थ्रू एक वेल डेडिकेटेड ट्रंच मतलब एक तरीके का, अंडरग्राउंड तो नहीं कहेंगे, बट अ लो बेसिन में एक तरीके का वे क्रिएट कर दो आप, मतलब एक मान लो 50-60 मीटर का या 10-20 मीटर का गड्ढा खोद दो, जहाँ से ईजिली, ठीक है, एलिफेंट का ग्रुप पास हो सके या उस ह्यूमन हैबिटेट से माइग्रेट कर सके, और इसके 5-10 मीटर में ह्यूमन एंट्री बैन कर दो, नॉट अलाउड, बिकॉज दिस इज द वे फॉर एलिफेंट्स टू पास थ्रू, ठीक है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो एक सॉल्यूशन बताया कि भाई इसके आसपास फेंसिंग कर दो सोलर, ताकि वो अपना एलिफेंट वे चेंज करने पे मजबूर हो जाएं, ठीक है। ये दो सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद एक और सॉल्यूशन है कि देखो, जो फेंसिंग की जाती है ना, उसमें क्या होता है कि जनरली लोग ही फेंसिंग तोड़ देते हैं ताकि वो अपने कैटल को फॉरेस्ट में ग्रेजिंग के लिए ले जा सकें, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, एलिफेंट्स भी इसको फेंसिंग को तोड़ देते हैं अपने पैर के थ्रू, ठीक है, अपने पैर से इस फेंसिंग को तोड़ देते हैं।
तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है फेंसिंग वाले सॉल्यूशन में कि लोग ही तोड़ देते हैं ताकि वो अपने कैटल्स को ग्रेजिंग पे ले जा सकें, और दूसरी क्या आ रही है कि भाई एलिफेंट खुद ही तोड़ देते हैं पैर से। फाइन। उसके बाद जो स्टेट की एको रेस्टोरेशन पॉलिसी है, ठीक है, ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है आपकी मेंस के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। जो एको रेस्टोरेशन पॉलिसी है उसमें भी प्रोविजन है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम कैसे किया जा सके। तो उसमें क्या प्रोविजन है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये प्लान कर रही है कि दे आर गोइंग टू प्लांट सुटेबल इंडिजिनियस ट्रीज लाइक वाइल्ड मैंगो, वाइल्ड जैक फ्रूट, कटहल का पेड़, वाइल्ड गूसबेरी, गूसबेरी इज अबाउट आंवला आई थिंक, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आंवला, आम के पेड़ और कटहल के पेड़ लगाने का सोच रही है, ठीक है, कहाँ पे, उन एरियाज में जहाँ पे जो फॉरेस्ट के फ्रिंज हैं, मतलब दिस इज कोर फॉरेस्ट, ठीक है, ये कोर फॉरेस्ट है, तो इसका जो ये फ्रिंज है ना, ये यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये इंडिजीनियस प्लांट्स लगा दें, प्लांटेशन कर दें इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको फूड सिक्योरिटी मिले, मतलब उनके लिए फूड भी कम है मान लो फॉरेस्ट में, तो वो फ्रिंजेस पे आके इन पेड़ को यूज़ कर सकते हैं एज देयर फूड, ठीक है। और ये एक तरीके का फेंस भी, एक तरीके का फेंसिंग सिस्टम काम करेगा ताकि वो एग्रीकल्चरल लैंड्स में आके एनक्रोच ना करें, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे, और इसको आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए किसके साथ, एआई टेक्नोलॉजी के साथ और वार्निंग सिस्टम और ड्रोन का यूज़ करके, कि आप सर्वेलेंस कर रख सकें कि भाई कहीं एलिफेंट एनक्रोच तो नहीं कर रहे हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में इस प्लांटेशन के बावजूद, ठीक है। ये सर्वेलेंस के थ्रू आप इंश्योर कर लें, बस दिस इज द मेजर, ठीक है। यही मेंस में लिखना है, यू विल गेट फुल मार्क्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ध्यान से सुनना, सुन लिया। अब जो लास्ट पार्ट है इस आर्टिकल में वो ये है कि हाउ इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कनेक्टेड टू ESG नॉर्म। आपको पता है एक एको सेंसिटिव जोन नाम का प्रोविजन लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था इसमें। एको सेंसिटिव जोन मतलब ये है कि भाई आपको कोर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट या प्रोटेक्शन वाले एरिया या नेशनल पार्क वाले एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके जो फ्रेंच एरिया है, फ्रिंज एरिया मतलब उसकी जो बाउंड्री है, उसमें भी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना होगा अप टू अ किलोमीटर, जनरली इट इज 1-2 किलोमीटर्स और अप टू 5 किलोमीटर्स, ठीक है। वहाँ तक आपको एक्टिविटीज़ को वहाँ भी रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि आप इंश्योर कर सकें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और आप ये भी इंश्योर कर सकें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक अच्छी तरीके से हो पाए, ठीक है। केरला की गवर्नमेंट को भी कहा था इंप्लीमेंट करने के लिए, बट केरला की गवर्नमेंट की ज्योग्राफी आपको पता है ना, वैसे ही विड्थ कम है स्टेट की, ठीक है। अगर ये फॉरेस्ट एरिया है ना, अब आप इसके 5 किलोमीटर में बोल देंगे कि भाई यहाँ पे भी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करो, तो ह्यूमंस कहाँ जाएंगे, सिर्फ 2-3 किलोमीटर में रहेंगे क्या। तो इसलिए केरला गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई हम ESG वाले नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, वी वांट एग्जामिशन फ्रॉम इट, बट हाउएवर state that is densely populated with severe land scarcity and significant number of people living close to wildlife habitat, this would be difficult to implement। ये स्टेट ने आर्ग्यूमेंट रखा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। इसलिए वी हैव डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग इको सेंसिटिव जोन। तो इसलिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में एक मेजर ESG नॉर्म भी हो सकता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केरला स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव ने ये कहा है कि वैसे भी लैंड स्कार्सिटी है हमारे देश में, सॉरी हमारी स्टेट में, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पीपल पहले से ही वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के क्लोज में रह रहे हैं, अब उनसे कैसे खाली करवाएं ना इस 5 किलोमीटर के एरिया को, नहीं करवा सकते ना हम। तो इसलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है केरला स्टेट गवर्नमेंट को। फाइन, तो दिस इज द आर्टिकल, आई होप इट्स क्लियर, वी हैव डिस्कस्ड इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। दूसरा आर्टिकल जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है वो है रीसेंट रिपोर्ट ऑन लोकल फिनटेक प्लेयर्स। फिनटेक प्लेयर्स, यहाँ पे फिनटेक का मतलब क्या है, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में। सिंपल तरीके से आप समझो, फिनटेक वाली कंपनी ये सारी हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक है, अमेजॉन पे, पेटीएम, दीज आर ऑल फिनटेक कंपनीज, मतलब द कंपनीज विच यूज़ टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, वो फिनटेक प्लेयर्स हैं। तो इनके बारे में एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, अब उस रिपोर्ट का क्या कहना है, लेट्स डिस्कस इट। तो व्हाट वर द कंसर्न्स लिस्टेड बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है, ठीक है, फिनटेक के बारे में। तो क्या कंसर्न मेंशन किए उन्होंने, वी विल डिस्कस इन दिस आर्टिकल। और NPCI ने जो एक 30% की वॉल्यूम कैप लगाई है ना ट्रांजैक्शन पे, UPI के थ्रू जो होते हैं, वो क्यों लगाई है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फाइन, तो स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि पार्लियामेंट कमेटी ने 8 फरवरी को एक रिपोर्ट दी पार्लियामेंट में,
जहां पे उन्होंने बताया कि दे रेज्ड कंसर्न दैट द डोमिनेंस ऑफ फिनटेक एप्स ऑन्ड बाय फॉरेन एंटिटीज इन इंडियन इकोसिस्टम, ठीक है, उन्होंने कंसर्न रेज किए रिपोर्ट ने कि फॉरेन जो एंटिटीज हैं जो फिनटेक एप्स ऑन करती हैं, ठीक है, उनके बारे में कंसर्न्स दिए और ये बताया कि लोकल प्लेयर्स को प्रमोट करो आप। फाइन, तो रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट लोकल प्लेयर्स शुड बी प्रमोटेड। ओके, उसके बाद रिपोर्ट ने क्या कहा है कि भाई देखो, जो यूपीआई पेमेंट का ट्रांजैक्शन शेयर है कंट्री में वो इंक्रीज होता जा रहा है, अभी 73.5% है, ये फ्यूचर में इंक्रीज होगा, मतलब डिजिटल पेमेंट्स आर ऑन राइज इन इंडिया। फाइन, उसके बाद रिपोर्ट क्या बताती है, एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम, इंडिया में जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट्स, उसके बारे में क्या टिप्पणी करती है रिपोर्ट। तो कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि डिजिटल पेमेंट्स जो ऐप हैं वो इफेक्टिवली रेगुलेट करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज पेमेंट के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से राइज हो रहा है, मतलब इट्स ऑन अ राइज, इट्स ऑन अ वेरी फास्ट राइज। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज एप्स एंड मेक इफेक्टिव रेगुलेशंस so that they don't exploit or monopolize the market। क्लियर है। फिर उन्होंने रिपोर्ट ने यह भी कहा कि देखो जो आरबीआई है, फिर उसके बाद रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो आरबीआई है ना और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो लोकल एप्स को तो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं, लाइक एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये लोकल एप्स को तो अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं, बट जो फॉरेन एप्स हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको रेगुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये फॉरेन एप्स मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन में वर्क करते हैं, मतलब मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन इन द सेंस ये अलग अलग कंट्रीज में वर्क करते हैं, यूएस में भी हैं, इंडिया में भी हैं, फ्रांस में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं, तो ये अलग अलग कंट्रीज में, तो इनको रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका जो डोमेन है ना ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इट इज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फिर कमेटी ने यह भी कहा कि फिनटेक कंपनीज ओन्ड बाय फॉरेन एंटिटीज सच एज फोन पे, वॉलमार्ट जो एक फॉरेन कंपनी है वो ओन करती है, गूगल पे इज ऑफकोर्स बाय गूगल, वो डोमिनेट कर रहे हैं फिनटेक सेक्टर को। ठीक है, इंडिया के फिनटेक सेक्टर को फॉरेन एंटिटीज डोमिनेट कर रही हैं। कितना डोमिनेट कर रही हैं? ह्यूज शेयर। कितना? रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देखो लीडिंग मार्केट पेमेंट्स, मतलब जो अगर मार्केट में 100 पेमेंट्स हो रहे हैं ना, तो उसमें से गूगल पे के थ्रू और फोन पे के थ्रू कितने कितने हो रहे हैं? फोन पे के थ्रू हो रहे हैं 46%, 100 में से 46 पेमेंट फोन पे के थ्रू हो रहे हैं, और गूगल पे के थ्रू हो रहे हैं 36, मतलब आउट ऑफ 100 46 टाइम्स लोग फोन पे यूज कर रहे हैं, 36 टाइम्स गूगल पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जो इंडियन ऐप है, जो लोकल ऐप है भीम यूपीआई, उसका लोग सिर्फ 0.22% यूज कर रहे हैं फॉर देयर डिजिटल ट्रांजेक्शंस। फाइन, तो रिपोर्ट ने यह भी मेंशन किया है देयर इज अ ह्यूज शेयर ऑफ फॉरेन एंटिटीज इन फिनटेक पेमेंट मार्केट ऑफ इंडिया, इसलिए उनका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनके रेगुलेशन में हमें प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज उनका जुरिसडिक्शन मल्टीपल है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे है, तो हाउ टू कंट्रोल देम? वी नीड टू डिवाइज अ मेथड। फिर कमेटी ने रिकमेंड किया है कि जो एनपीसीआई ने इशू किया ना 30% वॉल्यूम कैप ऑन ट्रांजैक्शन फैसिलिटेटेड यूजिंग यूपीआई, अब ये कैप क्या है समझो। यहां पे आप एनपीसीआई जो पेमेंट रेगुलेट करता है कंट्री में, उसने कहा है कि 30% वॉल्यूम कैप लगाएंगे आपके ट्रांजैक्शन में अगर यूपीआई का यूज हो रहा है। 30% कैप मतलब द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड बाय एनी थर्ड पार्टी ऐप लाइक फोन पे, अमेजॉन पे individually could not exceed 30% of overall transaction made using interfaces cumulatively over 3 preceding months। ये तो एक डेफिनेशन थी, सिंपल वर्ड्स में यहां समझो आप, जितने भी एप्स हैं फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, तो इनसे जो टोटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कितने टाइम पीरियड में? 3 मंथ में। 3 मंथ्स में इन सारे एप्स के थ्रू जो टोटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मान लो 100 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें से 30% कैप है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऐप पे, मतलब फोन पे 30% कैप है कि जो टोटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके सिर्फ 30% आपके ऐप के थ्रू होंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इट्स अ कैप ऑन ट्रांजैक्शन। ऐसे ही पेटीएम पे भी कैप है। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कैप। तो अब कमेटी ने क्या कहा है? द रेगुलेटर हैड स्टेटेड दैट इट वुड हेल्प। अब ये कैप क्यों लगाया गया है? एनपीसीआई ने ये कहा है कि दिस कैप वी हैव मेड मैंडेटरी बिकॉज
It would help to address the risk and protect the UPI ecosystem as it scales up in future. जैसे ये फ्यूचर में जितना स्केल अप करेगा तो उसको प्रोटेक्ट और उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए हमने 30% कैप लगा रखी है. फाइन, क्लियर. उसके बाद कमेटी ने ये भी कहा है कि व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट फ्रॉड. मतलब यूपीआई पेमेंट का यूज करके लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्रॉड? द कमेटी ऑब्जर्व्ड दैट फिनटेक कंपनीज वर आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग. आपको मनी लॉन्ड्रिंग तो पता होगी, क्लियर है. मनी लॉन्ड्रिंग मैं सिंपल वर्ड्स में यहाँ बता देता हूँ आपको कि आपने जो पैसा कमाया है ना इलीगल तरीके से, उसको आप वाइट करना चाहते हो थ्रू मल्टीपल ट्रांजैक्शंस. मतलब आप इतना पैसा घुमा दो ना अपना मार्केट में कि जब इनकम टैक्स वाले आए तो वो पता ही नहीं कर पाए कि इसका सोर्स ऑफ क्या, अर्निंग क्या था, सोर्स ये कहाँ से पैसा आया था, इसका ऑरिजिन पॉइंट क्या था और ये कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, किसका पैसा है. इतनी बार मार्केट में घुमा दो, हज़ारों बार. तो इससे ना इसको ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं. फिर उसको हज़ारों बार घुमा के आप वाइट इकोनॉमी में लेके आ जाओ और एसेट या रियल एस्टेट में लगा दो. तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. तो अब लोग फिनटेक कंपनीज का भी यूज़ कर रहे हैं फॉर मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह का भी यूज़ हो रहा है. एक एग्जाम्पल दिया कमेटी ने, कहा कि अबू धाबी बेस्ड एक ऐप है. दिस इज द नेम ऑफ ऐप, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट इट्स PYPPL, पेपल. ठीक है, दिस ऐप वॉज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय चाइनीज इन्वेस्टमेंट स्कैमस्टर. चाइनीज के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जो स्कैमस्टर्स हैं, उन्होंने इसका यूज़ किया है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस. फाइन, एग्जाम्पल आपको मिला. हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन नहीं है और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए इतना मैकेनिज्म जानने के लिए. बट वी शुड नो दीज एप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग. उसके बाद व्हाट डज इट मीन फॉर द इकोसिस्टम. अब यहाँ पे इस वाले कॉलम में ये बताया गया कि हाउ टू डील विद दिस, विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स. तो डेलॉइट इंडिया में वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ ने सजेशंस दिए हैं. क्या सजेशंस दिए हैं? उन्होंने ये कहा है कि देखो, नेचुरल एडवांटेज तो लोकल एप्स या लोकल फिनटेक कंपनीज के पास है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर को. ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. एक ये उनके पास एडवांटेज है. और फॉरेन फिनटेक कंपनीज के पास क्या एडवांटेज है कि उनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स हैं और ग्लोबल कनेक्टिविटी है. तो रेदर देन कॉम्पीटिंग विद ईच अदर, अगर ये सारी आपस में आके एक बैलेंस क्रिएट कर दें, मतलब फिनटेक जो ग्लोबल फिनटेक है वो अपनी मेजर स्ट्रेंथ जिसमें है वो शेयर कर दें लोकल्स के साथ और लोकल वाली मेजर स्ट्रेंथ शेयर कर दें फॉरेन के साथ, तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम तैयार हो सकता है जिसके थ्रू पेमेंट वगैरह, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की एफिशिएंसी और ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है. एंड रेगुलेटर्स नीड टू रेगुलेट मोर प्रॉपरली. ठीक है, तो ये सजेशन प्रोवाइड किया है. फाइन, तो वी हैव डिस्कस दिस आर्टिकल, वी हैव कंप्लीटेड इट. फाइन, नाउ अब चलते हैं हम दूसरे आर्टिकल पे. दूसरा जो आर्टिकल है वो है व्हाई वाज देयर अ पॉलिटिकल डेडलॉक इन नॉर्दर्न आयरलैंड. कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्दर्न आयरलैंड में क्यों पॉलिटिकल डेडलॉक हुआ, क्या ट्रीटीज थी, उनका क्या हिस्ट्री था, हमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू वांट इट, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टोरी आपको बता दूंगा, स्टोरी बता दूंगा मैं आपको, द स्टोरी सो फार, मैं स्टोरी बता दूंगा, कॉन्टेक्स्ट बता दूंगा अभी राइट नाउ. बट इफ़ यू वांट टू गो इन डिटेल तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले शायद आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले के एनालिसिस में मैंने डिस्कस किया हुआ है. ये पहले आर्टिकल आ चुका है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक डाल दूंगा और साथ में लिंक के मैं टाइमलाइन लिख दूंगा कि किस टाइमलाइन पे इस वीडियो को आपको वॉच करना है, ताकि आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके उसी स्पेसिफिक पार्ट को देखें और समझें. ठीक है, आई हैव पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट सी एंड वॉच इट. उसके बाद जो नेक्स्ट आई विल समराइज द स्टोरी. स्टोरी क्या है यहाँ समझो आप. देखो, नॉर्दर्न आयरलैंड में न्यू गवर्नमेंट बन चुकी है 2 साल के डेडलॉक के बाद. देयर वाज अ पॉलिटिकल डेडलॉक फॉर 2 years. ठीक है, उसके बाद न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, ये पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म हो गया है. ठीक है, ये स्टोरी है. अब पॉलिटिकल डेडलॉक किन 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में था? 2 मेन पार्टीज थी जो जिनके बीच में पॉलिटिकल डेडलॉक था. ये उसमें से पहली जो पार्टी है वो है प्रो आयरिश यूनिटी. पार्टी का नाम याद रखो, प्रो आयरिश यूनिटी सिन फिन पार्टी. ठीक है, प्रो आयरिश यूनिटी सिन फिन पार्टी. तो इसके बीच में और डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, ये दोनों पार्टीज के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो गया था, इसलिए गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी. ठीक है, अब डेडलॉक क्रिएट होने का रीजन क्या था? रीजन था कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड ने यूरोपियन यूनियन से विड्रॉल कर लिया था अपने आप को. ठीक है, विड्रॉल जब इन्होंने कर लिया अपने आप को, तो दोनों जो पार्टी हैं इनके डिफरेंट व्यूज थे कि भाई
ये विड्रॉल सही है यूरोपियन यूनियन से कि नहीं है। तो जब कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज थे इस बारे में, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाई और ये एक पॉलिटिकल डेडलॉक में चली गई। मतलब दे कुडंट मेक द कंसेंसस, ठीक है, कि हमें वी डन राइट और नॉट विद द विड्रॉल, या विड्रॉल के बाद की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है, उस पर कंसेंसस नहीं डेवलप हो पाई, इसलिए ये पॉलिटिकल डेडलॉक में चली गई थी। अभी वो पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म हो चुका है। अभी प्रो आयरिश यूनिटी जो पार्टी है उसने इलेक्शन जीत लिया है, ठीक है, उसने इलेक्शन जीता है, तो उसका एक मेंबर प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट होगा और जो अपोजिशन पार्टी है उसका एक मेंबर डिप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट होगा। एक चीज क्लियर कर दूंगा आपको, जो नॉर्दर्न आयरलैंड के केस में एक्सेप्शन है वो ये है कि ये जो पोस्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर और डिप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर, ये दोनों पोस्ट सेम लेवल की पावर रखती हैं, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास, सेम पावर है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, कोई भी दे डोंट हैव एनी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू पोस्ट। तो अगर आपको सरकार बनानी है तो मैंडेटरी है आपको कि आप प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी फिल करें, और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कौन फिल करेगा? जो पार्टी इलेक्शन जीत के आएगी, और जो पार्टी इलेक्शन हारेगी अपोजिशन पार्टी, उसको अपना एक मेंबर फर्स्ट मिनिस्टर के तौर पे, डिप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर वो मना कर देता है अपॉइंट करने से, तो ये एक पॉलिटिकल डेडलॉक की सिचुएशन हो जाती है, और इस पॉलिटिकल डेडलॉक को कंसेंसस के बेसिस पे रिजॉल्व करना चाहिए, ऐसा मानना है। फाइन, स्टोरी इज क्लियर। अगर आपको डिटेल में जानना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो थ्रू इट। सो वी हैव कंप्लीटेड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, फाइन। नाउ डायरेक्टली वी विल स्विच ऑन टू साइंस पार्ट ऑफ दिस न्यूज़पेपर। तो साइंस वाले पार्ट में क्या क्वेश्चन आया है? दिस इज द साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में जो आर्टिकल आया हुआ है, 100 years ago सत्येंद्र नाथ बोस चेंज्ड फिजिक्स फॉर एवर। मतलब सिंपल है ये आर्टिकल, हमारे मेंस के सिलेबस में भी मेंशन्ड है, अबाउट साइंटिफिक पर्सनैलिटीज, ठीक है, उससे ये लिंक्ड है। तो सत्येंद्र बोस जो है ना साइंटिस्ट, उनके बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आई हैव मेड अ वीडियो, जस्ट वॉच इट। Imagine a world where the rules of physics as we know them are completely turned on their head. That's the world that Satyendra Nath Bose introduced us to a century ago. Born in India, Bose was a brilliant physicist who rewrote the rules of the microscopic universe. His work began in a time where physicists were grappling with the enigma of Planck's law. This law, discovered by Max Planck, explained the radiation emitted by all hot objects, but it had a major flaw. It violated the known laws of physics. The law required energy to be fundamentally discrete or quantized, a radical concept that gave birth to quantum mechanics. But despite its revolutionary implications, physicists pointed out that Planck's derivation was flawed. The statistical methods used didn't stand up to scrutiny. Enter Bose, who took up this challenge with a fresh perspective. Bose's work was not only a monumental scientific breakthrough, but also a testament to the power of human curiosity and the pursuit of truth. Bose was not content with the inconsistencies of Planck's law. He saw the gaps in logic and set out to correct them. His approach was unique and revolutionary. He used results from pioneers like Einstein, who explained the photoelectric effect, and Arthur Compton, who showed that light carries discrete units of momentum. Armed with these insights, Bose embarked on his mission to derive Planck's law. Bose identified a fundamental issue with previous derivations. They were mixing principles from both quantum physics and classical physics, creating a logical inconsistency. He recognized that the derivation needed to be purely quantum. Planck's original derivation was based on a model of the black body and the mechanism by which it produces radiation. This was where classical physics had entered the story. But Bose showed that all of this was unnecessary. Planck's law was independent of the mechanism that produced it. So how did he do it? Bose stripped the problem down to its essence, finding the most probable way of distributing energy among quanta of radiation. He showed that the most probable way translated to Planck's formula. His major result was profound. Planck's law was simply a statistical property of the quanta of radiation, or photons. But his methods also had other crucial results. For instance, the total number of photons is not conserved. Photons could appear out of thin air and disappear into nothingness. Bose had not only corrected the mistakes of his predecessors, but had also opened up a whole new understanding of the world of physics. Bose's discovery didn't just rewrite the rules of physics, it set the stage for a whole new era of scientific exploration.
This breakthrough brought about a paradigm shift, challenging long-standing beliefs and opening up a world of infinite possibilities. Bose's groundbreaking work unveiled a startling truth. The total number of photons is not conserved. Picture this: photons, the fundamental particles of light, appearing out of thin air and disappearing into nothingness. This concept was as fascinating as it was perplexing, for it defied the very laws of classical physics. But it was this radical idea that led to the birth of quantum mechanics, a field that has since revolutionized our understanding of the universe. From the tiny particles that make up matter to the vast expanses of the cosmos, quantum mechanics has given us a new lens through which to view the world. It has allowed us to delve into the depths of the microscopic and the macroscopic, revealing phenomena that once seemed inconceivable. From quantum computing to quantum teleportation, the implications of Bose's discovery have been profound, reshaping the landscape of scientific research and technological innovation. Thanks to Bose's work, we now live in a world where the smallest particles can have the biggest impacts. And that, ladies and gentlemen, is the power of physics. Satyendra Nath Bose's discovery forever changed the way we understand the universe. His brilliant derivation of Planck's law, eliminating the inconsistencies of classical physics, revolutionized our perception of energy and matter. His work, revealing that photons could appear and disappear, was a groundbreaking addition to the realm of quantum mechanics. Bose's contributions have left an indelible mark on the field of physics, influencing generations of scientists. 100 years later, Bose's work continues to inspire and intrigue us. It's a testament to the power of curiosity and the endless possibilities of the human mind. फाइन, तो ये आर्टिकल पूरा समराइज था वीडियो में. आई होप यू हैव वॉच्ड इट. बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. मेजर इनके इन्वेंशंस दिए गए हैं विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस इट एट द एज अ एनालिसिस. फाइन. उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है साइंस सेक्शन में वो है सैटर्न्स मून मिमास में हैव ocean under its crust. Very exciting news, very good news. This also I have made a video with visuals. बड़ा मजा आएगा देखने पे. Just watch it. पूरा clear हो जाएगा. Okay? So we are not going to discuss here. Have you ever pondered the possibility of life existing on other planets or moons? Over the years, the cosmos has unfolded many of its mysteries to us. Yet the question of extraterrestrial life remains an intriguing enigma. Let's take a journey to Saturn's Death Star moon, Mimas. This 396-kilometer wide moon, known for its resemblance to the Star Wars Death Star, hides a profound secret, a hidden ocean buried miles beneath its battered crust. A moon that was once just a celestial body in the sky now holds a secret deep within. The tale of this discovery is as fascinating as the discovery itself. The journey began with a peculiar observation. The orbit of Mimas, one of Saturn's many moons, was behaving oddly. This led astronomers to two intriguing possibilities. Either this icy sphere concealed an elongated core shrouded in ice, or it harbored a hidden ocean deep within its crust, permitting its outer shell to shift independently of its core. To unravel this mystery, they turned to the trove of visual data from NASA's Cassini mission to Saturn. Through painstaking analysis of thousands of images, they reconstructed the precise spin and orbital motion of Mimas. As they traced its path looping around the gas giant, a pattern emerged that was impossible to ignore. Their calculations painted a clear picture. The only way Mimas could move the way it did was if it possessed a hidden subsurface ocean. The icy exterior of the moon was not a rigid shell, but a floating layer, slipping and shifting over a vast internal sea. The astronomers' conclusion was both startling and transformative. Mimas was not just an ordinary moon, it was an ice ball 250 miles wide, concealing a secret ocean deep beneath its battered crust. And so, it was revealed, Mimas, an ice ball 250 miles wide, was not just an ordinary moon. The revelation of Mimas's hidden ocean is not just a scientific curiosity, it's a profound realization. This icy moon, with its Death Star look, not only holds a massive impact crater on its surface but also a hidden ocean beneath its crust. This discovery places Mimas in an exclusive club, joining the ranks of Saturn's Titan and Enceladus and Jupiter's Europa and Ganymede,
moons known to harbor subterranean oceans. These oceans, existing in the cold void of space beneath layers of ice, spark curiosity and wonder. Could they potentially harbor life? This question has ignited a flurry of interest among space agencies around the globe. Yet, the possibility of life on Mimas remains uncertain. With its ocean only tens of millions of years old, life might not have had a chance to emerge. While life on Mimas remains a mystery, the discovery of its hidden ocean reminds us that the universe is full of surprises waiting to be unveiled. ठीक है, now we will go on to editorial part. Just a minute. Yes, this is the editorial part and we are going to discuss editorial part. एडिटोरियल में जो पहला आर्टिकल है वो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर स्टीयरिंग द सर्विस इंडस्ट्री. ठीक है, आर्टिकल जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन आई हैव हाईलाइटेड द पॉइंट्स. उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं ओवर एम्फेसाइज करूंगा, उसी पे फोकस रखना है. बाकी सब इस आर्टिकल में पेरिफेरी में पूरा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के बारे में बकवास की गई है, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. ओके, सो लेट्स डिस्कस. तो आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है? आर्टिकल में ये मेंशन्ड है कि भाई देखो, जो सर्विस सेक्टर है ना इंडिया में का, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है 53%. ठीक है, और इंडस्ट्री सेक्टर 28% कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो 31% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है सर्विस सेक्टर, वेयर एज इंडस्ट्री सेक्टर ओनली जनरेट 25% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. प्योरली स्टैटिस्टिक्स हैं ये, जिनको आप GS पेपर 3 में यूज़ कर सकते हैं. फाइन, याद रखना है आपको. 53% सर्विस, 28% इंडस्ट्री. एम्प्लॉयमेंट के केस में 31% सर्विस, 25% इंडस्ट्री. फाइन. उसके बाद ये सर्विसेज सेक्टर में क्या क्या आता है? तो सर्विसेज सेक्टर में आती हैं आपकी टेलीकॉम, रिटेल, कंसल्टिंग, हॉस्पिटैलिटी जैसे होटल वगैरह, बैंकिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज लाइक प्रोवाइडिंग क्लासेस, टेकिंग, कोचिंग इंडस्ट्री. दिस इज ऑल और अंडर एजुकेशन सर्विसेज. तो ये सारे सर्विसेज के अंडर आती हैं. ठीक है, इसके अलावा इंडिया और भी सर्विसेज ऑफर करता है. किनको? ग्लोबल प्लेयर्स को. आपने देखा ना, BPO सेंटर्स होते हैं हमारे यहाँ दिल्ली, नोएडा, मुंबई वगैरह में कॉल सेंटर्स. तो बेसिकली ये कॉल सेंटर्स क्या काम करते हैं? दीज कॉल सेंटर्स प्रोवाइड सर्विसेज फॉर देयर कंपनीज. मान लो अमेजॉन है US की कंपनी, तो अमेजॉन के जो US में कस्टमर्स हैं उनको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रोफेशनल कहाँ के हायर किए जाते हैं? इंडिया के. मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है, किसको? अमेजॉन के कस्टमर, US कस्टमर को, तो वो फ़ोन लगाएगा कि भाई कस्टमर केयर को फ़ोन लगाएगा, तो ये फ़ोन कस्टमर केयर वाला मुंबई आके लगेगा. तो मुंबई में जो पर्सन बैठा हुआ ना कॉल सेंटर में अमेजॉन के, वो अटेंड करेगा कॉल, और वो इसकी ग्रीवियंसेस को सुनेगा US के कस्टमर को और फीडबैक प्रोवाइड करेगा. तो ये हो गया सर्विसेज. वर्ल्ड लेवल पे भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज को. ठीक है, एग्जांपल क्लियर है. उसके बाद मार्केट रियलिटी क्या है कि देखो, जो मैसिव सर्विस इंडस्ट्री है वो कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए उसको स्किल्ड मैन पावर की. अब ये कंटिन्यूस सप्लाई कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये पूरा डिस्कस है यहाँ पे. तो एक वेबसाइट है स्टैटिस्टिका के अनुसार 57% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ओनली 57% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल. मतलब मेजर मतलब कितना? 43% आर नॉट इन अ कंडीशन टू गेट एम्प्लॉयमेंट. ये इंजीनियर्स की बात हो रही है जो भाई बीटेक वगैरह करके आते हैं, डिग्री लेके आते हैं 4 साल की, उनकी बात हो रही है यहाँ पे. फिर इस आर्टिकल में क्या आगे बताया गया कि भाई देखो, इंजीनियर में सिर्फ 57% एम्प्लॉयबल हैं. इन 57% में भी ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जिस फील्ड में इनको स्किल मिली है वहां तो ये एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढ पाते हैं. ये एम्प्लॉयमेंट कहां ढूंढ लेते हैं? दे गेट एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर. ठीक है, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है इन सर्विस सेक्टर्स में, जिनकी मैंने ऊपर बात की थी अभी, हेल्थ, रिटेल, टेलीकॉम. ठीक है, इनमें इनको प्लेसमेंट मिल जाता है, और बाकी की कंपनीज जिसकी स्किल इनको मिली है 4 साल की स्टडी के दरमियान, उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है इनको. अब इनको सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्यों मिल जाता है? क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है जो इनको इनके कॉलेज के दरमियान मिल जाती है. उसी के कारण इसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. कहाँ पे? सर्विस सेक्टर में. कौन कौन सी जॉब्स के लिए? भाई कस्टमर सर्विस के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, ठीक है, सेल्स के लिए, इन सब में इनको जॉब मिल जाती है. फाइन. उसके बाद आर्टिकल का ये कहना है कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग कि अ पर्सन विच गॉट आफ्टर स्टडिंग 4 years BTech स्किल टू डिज़ाइन अ मोटर कार. ठीक है, उसको वहाँ तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, बट उसको उसके बाद स्किल सेट है मोटर कार डिज़ाइन करने का, बट वो कर रहा है सेल्समैन की नौकरी. तो दिस मिसमैनेजमेंट बिटवीन स्किल्स एंड अ जॉब इज़ अ ह्यूज कंसर्न. ठीक है, इसको आप प्लस पॉइंट मत लीजिए, नेगेटिव पॉइंट है ये कंट्री में. ठीक है, तो इसको कैसे करेक्ट करना है? इन्होंने राइटर्स ने एक सजेशन दिया है.
सी दीज राइटर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स, ठीक है। कोई प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी का, तो कोई डायरेक्टर है किसी, पता नहीं ये KPMG, इट्स अ प्राइवेट कंपनी और व्हाट, आई डोंट नो, बट ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं और ये प्रोफेसर हैं कहीं के। फिर भी ऑन द सेक ऑफ डिस्कसिंग आई एम सेइंग कि जो जेनरिक कोर्सेज हैं वो चलाने चाहिए हमें, ताकि इन नौकरियों में जो स्किल सेट चाहिए, किनमें, सेल्समैन की, कस्टमर सर्विस की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, इन नौकरियों में जो स्किल सेट चाहिए वो स्किल सेट इन जेनरिक कोर्सेज में सिखाए जाएँ, ठीक है। ताकि ये वाला जो स्किल है ना, जो 4 साल का बंदा बीटेक करके आ रहा है, जिसके पास मोटर कार डिज़ाइन करने की स्किल है, भाई इसको ना एम्प्लॉयमेंट मिले इन सर्विसेज सेक्टर में, बल्कि उनको मिले जो ये जेनरिक कोर्स करके आ रहे हैं, ठीक है। प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप you can provide soft skills with this generic course, you can provide them soft skills, ठीक है, business acumen, ठीक है, how to behave, talk, ethical values, ठीक है। और आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, टेक्नोलॉजी से, ताकि ये और अच्छे से इनकी अपस्किलिंग हो पाए, ठीक है, फाइन। उसके बाद दे कुड रिसीव ट्रेनिंग इन सर्विस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजीज, तो इन सब में इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग इंटरेस्ट टू डिस्कस इट। उसके बाद ग्रोथ बूस्टर है, ठीक है भाई, सर्विस सेक्टर इज अ ग्रोथ बूस्टर, दैट्स व्हाई इस बूस्टर को बनाए रखने के लिए हमें जेनरिक कोर्स चलाना चाहिए, ये मेजर बात है यहाँ पे। बाकी एक डेटा दिया गया है कि 37% ऑफ वुमेन वर्कफोर्स है अपनी कंट्री में एज पर PLFS। तो अगर आप इस सर्विस सेक्टर में जनरल कोर्सेज टाइप के कोर्स चलाएंगे तो ये हेल्प करेगा वुमेन के एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने के लिए, फाइन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो वी हैव डिस्कस दिस आर्टिकल, you can leave it or you can listen it, no problem. Now the next article which is important for our perspective is ग्रीस और इंडिया के रिलेशंस के बीच बात हुई है इस आर्टिकल में। तो इसकी स्टोरी क्या है, जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो न्यू दिल्ली विजिट करने वाले हैं कब, फरवरी 21 और 22 को। यहाँ पे देखिए आप, जस्ट अ मिनट, फरवरी 21-22 को, अभी कल परसों जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट करने वाले हैं इंडिया, और नरेंद्र मोदी जी अगस्त 2023 को पहले ही ग्रीस को विजिट कर चुके हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है। कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर आई थिंक गाइस, डोंट लीव द सेशन, बी मोटिवेटेड, जस्ट लिसन, ठीक है। तो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं कब, 21 और 22 फरवरी को, और हमारे मोदी जी पहले ही 23 अगस्त को 2023 में अगस्त को ग्रीस होके आए हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है। अब ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा है कि इंडिया विल फाइंड नो बेटर गेटवे टू यूरोप देन माई कंट्री, एंड फॉर ग्रीस देयर इज नो बेटर गेटवे टू एशिया देन अ क्लोज स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप विथ इंडिया। मतलब ग्रीस के लिए एशिया का सबसे अच्छा गेटवे इंडिया है, और इंडिया के लिए ग्रीस सबसे अच्छा गेटवे है टू यूरोप। ये प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में ये क्वेश्चन आता है इंडिया एंड ग्रीस के बारे में, आपकी इंट्रो ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है। अगर ये लिखोगे ना तो पक्का 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आई गारंटी यू, ठीक है। सीधा यहीं से उठा लो भाई, मज़ा आ जाएगा। अब हेयर लेट्स सी द जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ग्रीस, थोड़ा यहाँ भी लुक कर लेते हैं अपन। तो दिस इज इंडिया एंड दिस इज ग्रीस। ग्रीस इज इन मेडिटेरेनियन सी, और ये ग्रीस का क्रेटे आइलैंड है, CRE, जस्ट अ मिनट, CRETE, ठीक है, क्रेटे आइलैंड। तो यहाँ से आपको पता है इंडिया के लिए सबसे अच्छा गेटवे ग्रीस है टुवर्ड्स यूरोप, ठीक है, और ग्रीस के लिए इंडिया सबसे अच्छा गेटवे है टुवर्ड्स एशिया। कैसे है ये गेटवे, समझाता हूँ आपको। जो भी ट्रेड जाती है ना वो यहाँ से जाती है यूरोप के लिए, यहाँ से रेड सी से होके, स्विस कैनाल से होके, मेडिटेरेनियन सी से होके ग्रीस के बॉर्डर को पार करते हुए यूरोप जाती है। तो ग्रीस गेटवे कैसे बन सकता है, ये जो आप ट्रेड ले जा रहे हो ना, इसको आप मेडिटेरेनियन में ले जाके यहीं ग्रीस के पोर्ट्स पे उतरवा दो, तो जब डिस्टेंस बच गई ना आपकी, यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनर यूरोप में, तो दिस इज अ गेटवे फॉर इंडिया, ठीक है। एंड हाउ इंडिया विल एक्ट एज अ गेटवे इन द सेम मैनर, यहाँ से ग्रीस की जो आएगी ना इंडिया उतरवा दो, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में, ठीक है। तो दिस इज द वे दे एक्ट एज अ गेटवे, फाइन, क्लियर है। उसके बाद एक और चीज़ मेंशन की है इन्होंने कि देखो इंडिया इज परसीव्ड एज अ ओल्ड एंड ट्रेडिशनल फ्रेंड ऑफ ग्रीस, ठीक है, मतलब हमारी हिस्टोरिकल टाइज भी हैं ग्रीस के साथ। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी क्या है, ग्रीस एंड इंडिया आर इन मैनी बेस प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी क्यों बोला है, बिकॉज दे आर लोकेटेड इन एरियाज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू द ग्लोबल सिस्टम बट एरियाज दैट आर पॉलिटिकली
जियोपॉलिटिकली वॉलेटाइल। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी बताया, इंडिया और ग्रीस को प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी क्यों बताया? बिकॉज दो रीजन दिए उन्होंने कि ये तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह पे लोकेटेड है दोनों। कैसे? ग्रीस अपना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है और ये इंडियन ओशन रीजन में लोकेटेड है इंडिया, तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, फाइन। दूसरा रीजन ये दिया कि ये एट द सेम टाइम दे आर अंडर जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, ये दोनों एरिया जियोपॉलिटिकली वॉलेटाइल भी रहते हैं, तो वी आर इन अ जियोग्राफिक प्रिजन। प्रिजन मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है कि हम एक्सप्लॉइट करें इस एरिया को, बट वी आर एट द सेम टाइम इन अ प्रिजन बिकॉज दे आर जियोपॉलिटिकली वॉलेटाइल, तो वी नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल क्या दिया है? एज रिसेंट इवेंट्स सीन इन द केस ऑफ रेड सी, ठीक है, ईस्ट मेडिटेरियन रीजन, ठीक है, इन सब में जो ये सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं ना, इससे पता चलता है कि ये एरिया जियोपॉलिटिकली वॉलेटाइल रहता है, फाइन। उसके बाद कॉपरेशन कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे इंडिया और ग्रीस के बीच में? पहला तो बायलैटरल स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंड बिजनेस कॉपरेशन है, मतलब स्ट्रेटेजिक है, दूसरा मिलिट्री है, तीसरा बिजनेस है, ये 3 कॉपरेशन है। उसमें के एग्जांपल क्या दिए गए हैं? इंडिया का इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ग्रीक की आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइजेज परफॉर्म करती हैं, ठीक है। फिर एक इंडियन कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद द ग्रीक कंस्ट्रक्शन कंपनी टू बिल्ड न्यू एयरपोर्ट इन आइलैंड ऑफ क्रेटे। आइलैंड क्रेटे पता ना दिस, यहाँ पे एक न्यू एयरपोर्ट बन रहा है इन पार्टनरशिप विद ग्रीस एंड इंडियन कंपनीज, ठीक है, ये यहाँ कॉपरेशन है। उसके बाद कॉपरेशन कहाँ पे है? मेजर सिस्टमैटिक बैंक इन ग्रीस हैज टाइड अप विद मेजर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सेल म्यूचुअल फंड्स, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमारा कॉपरेशन हो रहा है, ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद एट द इंटरनेशनल फोरम, एट द इंटरनेशनल लेवल वी कॉपरेट इन टर्म्स ऑफ, कहाँ पे? इन टर्म्स ऑफ द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, हमारे सेम इंटरेस्ट हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। कौन किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को। व्हाट इज दिस? यू हैव टू सर्च ऑन गूगल। टुडे आपका होमवर्क ये कि यू विल सर्च इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्लान है, बेसिकली ये इसका, ये आपको डिस्कस आपको सर्च करना है एंड यू हैव टू लर्न इट। उसके बाद एक जो एरिया है जहाँ पे कंसेंसस डेवलप होने वाली है वो है EU इंडिया बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। BTIA इज़ बेसिकली अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, तो अगर ये भी हो जाता है तो एक तरीके का ग्रीस के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। स्कोप ऑफ मोर लिंक्स कहाँ पे है? देखो ये सारे कॉपरेशन तो चल ही रहे हैं, बस स्कोप कहाँ पे है? देखो जब भी IR का कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि भाई देखो एट द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक लेवल, एट द मिलिट्री लेवल, एट द इकोनॉमिक लेवल, एट द पॉलिटिकल लेवल, ठीक है, इन मतलब पॉलिटिकल लेवल मतलब आपस में लीडर्स एक दूसरे की कंट्री में विजिट कर रहे हैं, ऐसे चीफ गेस्ट वगैरह, इन सब लेवल पे तो कॉपरेशन है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। स्कोप कहाँ बचता है कॉपरेशन बढ़ाने का? फर्दर एक ही जगह बचता है, वो है पीपल टू पीपल टाई, हर जगह काम आएगा, ये सब आंसर्स में काम आएगा कि भाई पीपल टू पीपल टाई बढ़ानी है हमें, इंडिया और ग्रीस के बीच में पीपल टू पीपल टाई बढ़ानी है। ये कैसे बढ़ेगी? आप मोर यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट जो हैं उनके एक्सचेंज प्रोग्राम करिए, कल्चरल एक्सचेंजेस प्रोग्राम करिए और मीडिया कॉर्पोरेशन बढ़ाइए अपना, तो इससे पीपल टू पीपल टाइप कैसे बढ़ेगी? जब लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे, मिलेंगे, फियर ऑफ अननोन खत्म होगा उनके बीच से, तो वो ऑटोमेटिकली आपस में एक दूसरे के आपस में टाइड फील करेंगे, ठीक है, ओके फाइन। तो वी हैव डिस्कस्ड एडिटोरियल, वी हैव कंप्लीटेड इट, नाउ लेट्स कम टू ओपिनियन पेज। ओपिनियन पेज में जो कावेरी पैक्ट है ना, जो बेसिकली कावेरी रिवर का इशू है उसके बारे में दिया गया है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस मैं कावेरी इशू बता देता हूँ आपको, यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, दिस इज जस्ट लोकेट हियर, ठीक है। बाकी सब ये इस वाले आर्टिकल में, बाकी यहाँ पे सब हिस्ट्री वगैरह दी गई थी, राजा महाराजाओं के टाइम की ट्रीटीज़ वगैरह, मैसूर, मद्रास, ब्रिटिशर्स, कोई ज़रूरत नहीं है यार, इट्स अ रीजनल इशू, इतना नहीं पूछेंगे वो, ठीक है, बट आपको कंट्रोवर्सी पता होनी चाहिए फिर भी। तो कंट्रोवर्सी क्या है? ये कावेरी रिवर है, ठीक है, कर्नाटका से स्टार्ट होती है, बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु पार करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो इस कावेरी रिवर में कर्नाटका एक अपर राइवेरियन स्टेट है, अपर राइवेरियन स्टेट मतलब अपर रिवराइन स्टेट मतलब वो स्टेट जहाँ से नदी ऑरिजिनेट होती है, उसको कहते हैं अपर राइवेरियन स्टेट, ठीक है, कर्नाटका है। तो कर्नाटका ने एक कृष्णा राजसागर डैम बना दिया है, ठीक है, रिजर्वायर टाइप का। तो इससे क्या हो गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो पानी है ना, देखो इसके आसपास एग्रीकल्चरल लैंड है, तो फार्मर्स इसी रिवर का यूज़ करते हैं फॉर कल्टीवेशन इन बोथ कर्नाटका एज वेल एज तमिलनाडु। तो इस रिवर के पानी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब कर्नाटका अपर राइवेरियन स्टेट है,
रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो अगर यहाँ पे कोई इसी कर्नाटका स्टेट में ही कोई पूरा पानी एक्सप्लॉइट कर ले तो नीचे तो ऑब्वियसली फ्लो कम हो जाएगा ना यार कर्नाटका के पास। तो दे विल प्रोटेस्ट, वी आर नॉट रिसीविंग आवर मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर इन कावेरी रिवर वाटर। ठीक है, तो यही इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है वाटर शेयरिंग का इन दोनों स्टेट्स के बीच में, ड्यू टू कर्नाटका बीइंग अपर राइपेरियन और तमिलनाडु बीइंग लोअर राइपेरियन। यही प्रॉब्लम आ रही है। उस पर कृष्णा राजा सागर डैम भी बना दिया है, जिसकी वजह से ये पानी रोकते हैं कर्नाटका वाले, तो नीचे फ्लो कम हो जाता है। तो जब फ्लो कम हो जाता है तो तमिलनाडु में प्रोटेस्ट होता है, फार्मर्स वगैरह प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कर्नाटका के खिलाफ। तो यही सब चल रहा है। ठीक है, इशू क्लियर है आपको, हिस्ट्री जानने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ए नेशनल इशू। फाइन, तो वी हैव डिस्कस्ड ओपिनियन एज वेल। तो वी हैव कंप्लीटेड टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, एडिटोरियल, ओपिनियन एंड साइंस सेक्शन। नाउ लेट्स स्विच ऑन टू द मेन पेज ऑफ हिंदू, जो कि बाकी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो जो मेन पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज की है वो है फ्रंट पेज पे, वो है यूज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट टेल्स टू सेंटर। कॉन्टेक्स्ट समझना, बहुत ध्यान से सुनना गाइस, इंपॉर्टेंट है, जस्ट फोकस। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर में ये बताया कि भाई जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है ना वो डिक्शनरी वाली अप्लाई होगी, और डिक्शनरी की डेफिनेशन के तहत अगर हम जाएं तो इंडिया में 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर का अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट लैंड है, वो भी इंक्लूड होगा फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ में आया। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस लॉ के ऊपर आया है, तो ये आया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के ऊपर। 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में फॉरेस्ट की डेफिनेशन को बहुत ही लिबरल तरीके में लिया था गवर्नमेंट ने, तो उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया था किसमें, 1996 में टीएन गोदावर्मन केस में। ठीक है, टीएन गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1980 वाला जो एक्ट है ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन, उसमें फॉरेस्ट की डेफिनेशन डिक्शनरी वाली डेफिनेशन होगी, ना कि कितना एरिया रिकॉर्डेड है या कितना गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड है, ये सब नहीं होगी, बल्कि वो डेफिनेशन होगी जो डिक्शनरी में लिखी है। अगर कोई जगह पे मिनिमम अमाउंट ऑफ पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वो डिक्शनरी फॉरेस्ट की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं तो वो फॉरेस्ट माना जाएगा एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 1996। क्लियर है? तो अब ये वाला जजमेंट क्यों दिया वापस से गवर्नमेंट ने, क्यों कहा कि भाई डिक्शनरी वाली डेफिनेशन ही चलेगी फॉरेस्ट की? वो इसलिए कहा क्योंकि 2023 में, एक साल पहले, पिछली साल 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, इसको अमेंड करके उन्होंने सेक्शन 1A में, ठीक है, सेक्शन 1A में इंट्रोड्यूस कर दिया था कि डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट नाउ ऑनवर्ड्स विल बी इन 2 कैटेगरीज। मतलब डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट विल इंक्लूड 2 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट, दीज आर डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एंड लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आफ्टर 1980। मतलब गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था सेक्शन 1A में, ठीक है, दैट डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट टू 2 कैटेगरीज। पहली फॉरेस्ट एंड सब, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट, जो गवर्नमेंट ने पहले से डिक्लेयर कर रखे हैं फॉरेस्ट, एक वो माने जाएंगे। दूसरे जो कि लैंड रिकॉर्ड में एज अ फॉरेस्ट रिकॉर्डेड हैं, ठीक है, आफ्टर 1980s, उनको भी हम कहेंगे कि भाई ये फॉरेस्ट है। इसी सेक्शन 1A को चैलेंज किया, एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट ने, जो पिटीशन फाइल हुई उसने सेक्शन 1A को चैलेंज किया, और सेक्शन 1A को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जजमेंट सुना दिया उस पर कि भाई ये गलत है, आपको डिक्शनरी वाली डेफिनेशन ही कंसीडर करनी पड़ेगी फॉरेस्ट को मानने के टाइम। ठीक है, यही पूरा ये केस था। इसका फॉलोअप पेज 12 पे है, उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी जो माइनर न्यूज़ है वो है फ्रंट पेज पे कि चंडीगढ़ में जो मेयर के इलेक्शन हुए थे ना, उसमें आपको पता है यू कैन यूज़ इन दिस फॉर एथिक्स केस स्टडी, कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि भाई इनमें हम जांच करेंगे सिलेक्शन की पूरी, ठीक है, तभी हम जजमेंट पे आएंगे कि इलेक्शन रद्द किया जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है, अभी मेयर की पोस्ट को होल्ड पे रख दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, अनिल शाह रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना, इन्होंने भाई डेमोक्रेसी की डेथ करने की कोशिश की है, हत्या करने की कोशिश की है, ऐसा कोर्ट का कहना है, इसलिए इसको वो कंसिडर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जब तक कंसिडर कर रहा है तब तक एक नया एपिसोड शुरू हो गया चंडीगढ़ में। वो ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी रिपोर्ट मिली कि जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब दल बदल रहे हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जैसा नीतीश कुमार जी ने किया अभी। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, इसी दल बदलने को कहा है हॉर्स ट्रेडिंग। मतलब मेयर के लिए आपको पता है कि काउंसलर्स की वोटिंग होती है तब मेयर चूज होता है, फाइन, तो यू नीड मोर काउंसलर्स। ठीक है, इसलिए दल बदलू
काम चालू है, ठीक है। दिस इज द हॉर्स ट्रेडिंग विच सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, इससे रिलेटेड हम सारी वीडियोस, सारे बैलेट पेपर्स मंगा रहे हैं जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के पास हैं, वो कोर्ट में पहुंच जाएंगे, तब हम इस पर हियरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 तारीख है ना, आज 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे, ठीक है, ये सारी हियरिंग्स होंगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट इन सारी वीडियोस को चेक करेगा, बैलेट पेपर्स को चेक करेगा और अपनी रूलिंग सुनाएगा। इसके केस में जो चीफ जस्टिस है ना अपने चंद्रचूड़, इन्होंने रेफ्यूज़ कर दिया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की रिक्वेस्ट को, जिन्होंने कहा था कि भाई इसको हियरिंग को पोस्टपोन कर दो एक दिन के लिए, 21 को रख लेना, कल रख लेना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, दल बदलू चल रहा है काम, तो हो सकता है कि आप इलेक्शन दल बदल के जीत सको। तो इसलिए हमें आज ही जजमेंट देना है अपना, 20 तारीख को ही 2 बजे, ठीक है। जिसको भी देखना हो भाई 2 बजे देख लेना। बाकी on this page nothing is important other than these 2 news. Page 2 you can leave it full, page 3 as well you can leave it, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ट्रस्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे। पेज या 6 ऑल्सो यू कैन लीव इट। 6 में जो एक चीज़ है ना जो हाईलाइटेड मैंने यहाँ पे किया है, वो इतना याद रखना है आपको, एक एक्सरसाइज है मिलान नाम की, वो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। मिलान इज़ अ नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे देखो मिलान। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है एलिफेंट ट्रैकिंग। एलिफेंट को ट्रैक किया जा रहा है AI का यूज़ करके, AI कैमरा का यूज़ करके। कहाँ पे? इडुक्की फॉरेस्ट, केरला, ओके। तो हाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रैकिंग एनिमल्स, फाइन। उसके बाद एडिटोरियल वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। ओपिनियन वी हैव डिस्कस्ड, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है। तो वी हैव या हियर ऑल्सो जो पहली न्यूज़ थी ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाली, जो फॉरेस्ट डिक्शनरी डेफिनेशन यूज़ करनी थी, उसका जो ये फॉलो अप है ना, वो भी देख लो जरा। ये जो फॉलो अप है वो क्या कह रहा है? फॉलो अप, जस्ट अ मिनट या दिस फॉलो अप। तो ये फॉलो अप ये कह रहा है कि देखो, बेंच सेड दैट द सेम डिक्शनरी मीनिंग वुड कंटिन्यू टू होल्ड टिल, ठीक है, ये कंडीशन लगाई उन्होंने, डिक्शनरी डेफिनेशन फॉरेस्ट की तब तक चलेगी टिल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लाइक एरियाज, अनक्लास्ड एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड्स। सिंपल वर्ड्स में ये समझो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई देखो, डिक्शनरी जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की वो तब तक चलेगी जब तक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अपने अपने स्टेट और अपने अपनी यूटीज में, ठीक है, कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड नहीं तैयार कर लेते हैं। किसका? टोटल फॉरेस्ट कवर का। कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड मतलब ईच एंड एवरी लैंड शुड बी स्टडीड एंड फाइंड आउट वेदर दिस कंटेन्स लैंड, दिस लैंड इज एलिजिबल टू बी रिगार्डेड एट फॉरेस्ट और नॉट। मतलब पूरा स्टेट आप स्टडी करिए, फिर पूरे स्टेट को स्टडी करने के बाद आप ये कंक्लूजन निकालिए कि जो फॉरेस्ट कवर है या जो ट्री कवर है स्टेट में, क्या इसको फॉरेस्ट का दर्जा दिया जा सकता है? इस पे आप कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड तैयार करिए। जब आप ये रिकॉर्ड तैयार कर लेंगे ना, तो फिर हम आपको परमिशन दे देंगे कि भाई आप डिक्शनरी की डेफिनेशन यूज़ मत करो, अब आप अपने रिकॉर्ड के बेसिस पे एक फॉरेस्ट की डेफिनेशन डिज़ाइन करो, उसी को यूज़ कर लो, ठीक है। ये एक्सेप्शन डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ये एक्सेप्शन क्यों डाला? क्योंकि कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड प्रिपेयर करने की बात हुई थी रूल 16 में, जो कि एक नोटिफिकेशन इशू किया था किसने? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2023 में नवंबर की, ठीक है। तो उसी को फॉरवर्ड रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने ही जो भाई नोटिफिकेशन इशू किया था ना, उसी को मैं बोल रहा हूँ कि उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप काम करिए, ठीक है, कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड बनाइए और हम आपको डिक्शनरी की डेफिनेशन यूज़ ना करने का प्रोविजन दे सकते हैं। फाइन। उसके बाद तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वो 31 मार्च को सारे रिकॉर्ड फॉरवर्ड कर दें और उसमें लिख दें, अगर उन्होंने पहले डिसीजन दे दिए हैं तो अपने डिसीजंस को स्टैंड बाई पे लगाएं या रिवोक करें और रिकॉर्ड्स में लिखें कि भाई जो न्यू डेफिनेशन है वो डिक्शनरी के बेसिस पे यूज़ होगी एज ए फॉरेस्ट, ना कि और कोई डेफिनेशन यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद बेंच ने ये भी कहा कि अगर कोई नया जू या सफारी स्टैब्लिश करनी है गवर्नमेंट को या किसी भी अथॉरिटी को, तो सबसे पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। यू नीड अ कंसेंट फ्रॉम अ टॉप कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट से आपको कंसेंट करना पड़ेगा। बिना कंसेंट के फाइनल अप्रूवल नहीं दे सकते आप। फाइन, ये फॉलो अप था न्यूज़ का, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया, ओके। बाकी ऑन पेज 12 नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप इट। बाकी सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं आपको बता भी दूँ यार। एनसीपी को न्यू फैक्शन कंटिन्यूज टू यूज हिज नेम, LS लोकसभा प्रिविलेजेस वगैरह, ऑल पॉलिटिकल। ऑन पेज 13 एज वेल ऑल पॉलिटिकल न्यूज़, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। पेज 14 एज वेल पॉलिटिकल, यू कैन इग्नोर इट। पेज 15 वर्ल्ड न्यूज़ में आज कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं है, तो यू कैन इग्नोर, यू कैन स्किप इट। उसके बाद उसके बाद जो 16 पेज है ना इकोनॉमी वाला सेक्शन, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आज, आई एम वेरी सॉरी।
पेटीएम अपनी बचाने के लिए पेटीएम बैंक सेट टू सीक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइसेंस फ्रॉम एनपीसीआई, ठीक है, मतलब नथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. ओके, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एंड लास्ट इज साइंस सेक्शन. या तो वी हैव कवर्ड द हिंदू, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द न्यूज़ वेरी इलैबोरेटली वीडियोज़ के फॉर्म में, ताकि आप अच्छे से रीडिंग कर सकें. तो दोज हु हैव वॉच्ड द सेशन टिल लास्ट, थैंक यू सो मच. आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं चीज़ें, आपको ज़रूर 101% फ़ायदा होगा. ट्रस्ट मी, दिस डिस्कशन विल हेल्प यू अ लॉट इन मेंस एंड एज वेल एज प्रीलिम्स. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. इसके बाद आपको हिंदू पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. नो अदर डिस्कशन यू नीड टू वॉच आफ्टर दिस. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू.